Hello everyone. Today, this chapter we are going to study One Straw Millionaire. So, this is a story, basically a folk tale set in Japan. This story is of Japan, and it is kind of a folk tale. Folk tale is a kind of tales. इस तरह की stories होती हैं जो traditionally बहुत पहले से चली आ रही हैं. A famous kind of a story that goes from people to people, right? एक दूसरे से एक के बाद एक हर इंसान सुनाता जाता है. Traditionally एक story जो है वो बरसों से चली आ रही है. That kind of a story it is. So have you ever been into Japan? If not, do not worry. Let us learn some interesting facts about Japan. अगर आप जापान गए हैं वेल एंड गुड, और अगर नहीं गए हैं तो देयर आर सम फैक्ट्स that you should know about Japan. Japan is called the land of the rising sun because it is the first country to see the sunrise. Japan को land of the rising sun भी कहा जाता है क्योंकि it is the first country to see the sunrise. ये पहली कंट्री थी जिसने सनराइज देखा, एक्सपीरियंस किया. The Japanese eat more fish than any other people in the world. और किसी भी कंट्री से ज्यादा जापानीज जो है वो फिशेस कंज्यूम करते हैं. दे ईट फिशेस मोर देन एनी अदर कंट्रीज पीपल. सो चेरी ब्लॉसम इज जापान्स नेशनल फ्लावर एज लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर. चेरी ब्लॉसम इज जापान्स नेशनल फ्लावर. Mount Fuji is the tallest mountain in Japan. In Japan, it is considered rude to tear off the wrapping paper of a gift. So suppose if you go to Japan and somebody gifts you something and it is wrapped with a wrapping sheet, gift sheet, and you tear that sheet in front of that Japanese or a Japan person, what will happen? That person will feel very bad or sad about it. Why? Because it is considered very rude to tear off the wrapping paper of the gift. So be careful whenever you go to Japan. If somebody gifts you something, do not tear. Don't ever tear the paper, wrapping paper in front of them, and not even behind. So Japanese farmers grow square-shaped watermelons. So as in India, we have round or oval-shaped watermelons. In Japan, they have square-shaped watermelons. In Japan, there are more pets than children. बच्चों से ज्यादा वहां पर pet animals हैं. So this is something really very good, right? Okay, now let us read what is in the story. So this story is about a farmer. Once upon a time in a village in Japan, there lived a farmer who was very hardworking but very poor. एक बार की बात है जब छोटे से गांव में जापान के एक फार्मर रहते थे जो कि बहुत मेहनती थे लेकिन बहुत पुअर थे, गरीब थे. नो मैटर व्हाट ही डिड, ही नेवर हैड इनफ मनी इवन टू फीड हिमसेल्फ. चाहे वो जो कर लें, लेकिन उनके पास इतना भी नहीं था कि वो खुद को पेट भर के खाना खिला सकें. सो वन डे ही वेंट टू द टेम्पल एंड क्राइड. सो एक दिन क्या हुआ, वो टेम्पल गए. टेम्पल इज अ प्लेस, अ होली प्लेस फॉर हिंदूज. So that farmer must be a Hindu. So he went to the temple and God, I have always been honest and sincere, but it has brought me nothing. Please show me a way. So उन्होंने गॉड से कहा, अपने गॉड से कहा, क्या कहा? I have always been honest and sincere. मैं हमेशा बहुत ही सच्चा और काम पर तवज्जो देने वाला रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिला. After he prayed, he sat down on the steps and dozed off. Just then a vision appeared before him and whispered. तो फिर जब उन्होंने दुआ कर ली, उसके बाद वो स्टेयर्स पर जाकर बैठ गए और सो गए. So what he had in his dream, he experiences a voice. उनको ख्वाब में एक आवाज आई जो कह रही थी, डियर चाइल्ड, आफ्टर यू वेक अप वैल्यू व्हाट यू हैव इन योर हैंड बट शेयर इट विद अदर्स एज यू मूव फॉरवर्ड. उनको उस ड्रीम में, उस ख्वाब में आवाज आई कि आप जब भी उठो, जब भी आपके हाथ में सोकर उठकर जब आपके हाथ में कुछ आए, उसको आपको बहुत ही संभाल कर रखना है, और जो भी मिले आपको, व्हेन यू विल बी गोइंग बैक टू योर होम, और रास्ते में आपको जो भी मिले उसके साथ आपको शेयर करना है. Let's see what happened next. So the farmer woke up with a start. He looked about and saw a piece of straw stuck to his clothes. So farmer जब उठे,
उन्होंने इधर उधर देखा और उनको एक स्ट्रॉ मिला। स्ट्रॉ क्या होता है? अ ग्रेन और सम जो गेहूं की जो वो होता है, बाली होती है ना, जो एक वो होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें से यहाँ पर गेहूं होते हैं ना, यहाँ पे छोटे छोटे पूरी में, तो दिस इज अ स्ट्रॉ। सो ही फाइंड दिस स्ट्रॉ इन हिज क्लोथ्स, ही टुक इट आउट एंड होल्ड इट इन हिज हैंड। उन्होंने अपने हाथ में लिया ये और उन्होंने सोचा कि क्या अजीब ख्वाब था। Then what happened next? Although he did not understand the vision, he decided to keep the straw. Just then a horsefly sat on it. He caught it immediately and tied it to the straw with the thread. हालांकि उनको ख्वाब आया था वो समझ में नहीं आया उसका मतलब, लेकिन वो उनके हाथ में था स्ट्रॉ और उस पर आकर एक हॉर्स फ्लाई आकर बैठ गई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थ्रेड लिया और उस हॉर्स फ्लाई को उस स्ट्रॉ से बांध दिया। एंड ही मूव्स अहेड। So he left the temple and was soon on his way with the straw. Just then he saw a mother and their boy howling. So वो वहां टेम्पल से आगे चल दिए और रास्ते में उन्हें एक लेडी मिली एंड विद दैट लेडी वाज अ स्मॉल बेबी। उनका बच्चा था जो रो रहा था। ही जस्ट डज नॉट स्टॉप क्राइंग, आई डोंट नो व्हाट टू डू। और उन लेडी ने उनसे कहा, फार्मर से कहा कि बस रोना नहीं बंद कर रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। द फार्मर हैड एन आइडिया एंड देन फार्मर को एक आइडिया आया। डू यू वॉन्ट दिस? उन्होंने बेबी से बोला, वो स्ट्रॉ में जो उन्होंने फ्लाई को जो है वो टाई कर रखा था, उन्होंने उसको दिखाकर बेबी से कहा, डू यू वॉन्ट दैट? बेबी ने जल्दी से कहा, यस यस, हाँ मुझे चाहिए। द फार्मर टुक द स्ट्रॉ एंड डैंगल्ड इट इन फ्रंट ऑफ द होलिंग बॉय। और फार्मर ने वो स्ट्रॉ दिखाया और उसको हिलाना शुरू कर दिया बॉय के सामने। द बॉय वॉज क्यूरियस एंड स्माइल्ड। और बॉय को बस जल्दी से, जैसे छोटे बच्चे जो भी चीज देखते हैं उन्हें चाहिए होता है, द सेम वे दैट बॉय ऑल्सो वॉन्टेड to have that straw. In return for the farmer's kindness, the women gifted him 3 oranges. और बच्चा चुप हो गया, बहल गया, तो माँ खुश हो गई और उन्होंने खुशी में कि फार्मर ने मेरी हेल्प की, फार्मर को 3 oranges दिए। The farmer was feeling happy already. The act of kindness had uplifted his mood. अब फार्मर को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि उन्होंने किसी की हेल्प की और उससे उनका मूड अच्छा हो गया था। Then as he walked further, he saw a young girl and an old man under a tree. जैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा और एक लड़की थी, a young girl. She is my employer's daughter and she feels unwell. She is thirsty and we have no water. और जो ओल्ड मैन थे उन्होंने बोला फार्मर से कि ये मेरे एम्प्लॉयर की बेटी है। एम्प्लॉयर इज अ पर्सन अंडर होम दैट ओल्ड मैन मस्ट बी वर्किंग। ये जिसके अंडर काम करते होंगे ये उनकी बेटी थी। और ही सेज टू हिम कि ये मेरे एम्प्लॉयर, मेरे बॉस की बेटी है और इनको भूख लगी, प्यास लगी। शी इज फीलिंग थर्स्टी, शी नीड्स टू ड्रिंक सम water. So the farmer remembered to share his gifts and he gave the oranges to the girl who upon eating them felt refreshed. और फार्मर को अपना वो ड्रीम याद आ गया जिसमें आया था कि उनको हेल्प करनी है, जो भी उनके पास है वो दूसरों से शेयर करना है। So what he did, he gave those oranges to the young girl and the young girl eated those oranges and felt refreshed. और जो यंग गर्ल थी उन्होंने वो ऑरेंजेस खाए और उनकी प्यास दूर हो गई। हैप्पी विद द फार्मर, द ओल्ड मैन गेव हिम एन एक्सपेंसिव रोल ऑफ सिल्क टू थैंक हिम। और फार्मर से खुश होकर उन जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने अपना एक सिल्क रोल दिया। सिल्क रोल बहुत ही एक्सपेंसिव आता है, एक्सपेंसिव मिलता है। उन्होंने वो अपना सिल्क रोल पूरा दिया उनको थैंक यू, एज अ थैंक यू गिफ्ट। Soon he saw a stream and thirsty as he was, he knelt down to drink water when suddenly अब फार्मर को प्यास लगने लगी थी और उन्होंने एक स्ट्रीम देखी, एक पानी देखा कहीं पर और वो वहां पर पानी पीने चले गए। हैंड मी द रोल ऑफ सिल्क एट वंस बिफोर आई हर्ट यू। Reluctantly the farmer gave up his wonderful gift. The soldier in his hurry led behind his horse. और अचानक से जब वो पानी पी रहे थे तो पीछे से एक सोल्जर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये सिल्क का जो रोल है, क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव होता है, ये मुझे दे दो। और वो फार्मर घबरा कर वो सिल्क जो है वो रोल उनको दे देता है सोल्जर को और वो जल्दी से वहां से चले जाते हैं, लेकिन अपना घोड़ा ले जाना भूल जाते हैं, घोड़ा वहीं रह जाता है।
The horse seemed tired, but the kind farmer stroked his head and took him to the stream to drink some water. He then cut some juicy grass for the horse to eat. और वहां पर जो घोड़ा था वो काफी प्यासा और थका हुआ लग रहा था, और फार्मर क्योंकि बहुत ज्यादा काइंड थे, वो उन घोड़े को पानी तक ले जाते हैं, स्ट्रीम तक ले जाते हैं पानी की, और वहां पर उन्हें पानी पिलाते हैं और ताजा घास काट कर लेकर आते हैं घोड़े को, और घोड़े को घास खिलाते हैं. After a while, the horse was feeling refreshed. Having got a horse for the first time in his life, the farmer wanted to go for a ride. जब घोड़े को पानी पिला दिया, घास खिला दी, तो घोड़ा भी रिफ्रेश हो गए, और फार्मर ने पहली बार घोड़ा देखा था, तो उनको बहुत ज्यादा मन हो रहा था कि वो घोड़े की राइड पर जाएं, घोड़ा चलाएं. So just as sundown came, the horse stopped outside a magnificent house, and the farmer stepped down. Seeing a grand horse outside his house, the merchant came out to see them. You seem to have traveled far. Please come in and rest. So, घोड़े से जब वो राइड पर जा रहे थे, तो उनको सामने से थोड़ी आगे जाकर एक घर दिखा जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, और उसमें से एक मर्चेंट निकल कर आए बाहर. एंड वॉट ही सेड टू द फार्मर दैट यू सीम टू हैव ट्रेवल्ड फार. ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, आइए थोड़ा सा आराम कर लीजिए. द मर्चेंट आइड द ग्रैंड हॉर्स एंड वांटेड टू बाय इट फ्रॉम द फार्मर. ही आस्क्ड हिम टू कम इनसाइड फॉर टी, एज was a custom in those days. You never turned away a stranger. मर्चेंट जो थे वो, उनको घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, और वो फार्मर से वो घोड़ा खरीदना चाहते थे, और उन्होंने फार्मर को इनवाइट किया अपने घर पर चाय के लिए, क्योंकि उन दिनों किसी भी स्ट्रेंजर को बिना नाश्ता, बिना सर्व किए वापस भेज देना was not in their tradition. So the merchant said to the farmer, I really liked your horse. Is there any chance that you might sell it to me? Farmer से merchant ने कहा कि मुझे आपका घोड़ा बहुत पसंद आ रहा है, क्या कोई ऐसा चांस है कि आप ये घोड़ा मुझे बेच दें? Sure sir, the horse is very well behaved, but it is not mine. फार्मर ने कहा, वाकई घोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेरा नहीं है. Impressed by the farmer's honesty, the merchant paid a large sum for the horse. Just then his daughter walked in with tea. मर्चेंट ने इम्प्रेस होकर वो घोड़ा फार्मर से खरीद लिया, और फार्मर को उसके बदले बहुत बड़ा अमाउंट दिया, बहुत बड़ा कैश प्राइस दिया. Father, this is the man who helped me on the road when I was unwell. So later the merchant's daughter came inside and told his father that this farmer is the same person who has helped me while I was feeling thirsty. तो मर्चेंट की बेटी ने बताया कि ये वही इंसान है, वही शख्स है जिसने मुझे रास्ते में हेल्प की थी when I was feeling thirsty, and he gave me his oranges. So young man, you are not only honest but also very caring. I could use such a man as my business partner. Will you please join me? तो मर्चेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, और मर्चेंट ने जो है वो फार्मर को एक ऑफर दिया. उन्होंने कहा, आप ऑनेस्ट ही नहीं, आप बहुत ज्यादा केयरिंग भी हो, ऐसे इंसान के साथ मैं बिजनेस करना चाहूंगा, क्या आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे? द फार्मर हैप्पीली सेड यस टू द ऑफर. और फार्मर ने खुशी खुशी हाँ कह दिया. अब आपको समझ आया स्टोरी. फार्मर ने एक स्ट्रॉ में एक हॉर्स फ्लाई बांध कर और वहां से लेके यहाँ तक का सफर, बस फार्मर ने बीच में बहुत ही ज्यादा केयर गिविंग एटीट्यूड रखा, और लास्ट में क्या हुआ, एक बहुत ही गरीब पुअर फार्मर, और उनको फाइनली एक मर्चेंट के साथ ऑफर मिल गया बिजनेस का. सो दिस इज हाउ बीइंग केयरिंग कैन help you. So we should also be very caring and helping towards other people. We should always help whoever to the person, to the needy people or the people those who wants help. हमें हमेशा 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 कभी भी किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो जरूर करना चाहिए. It is for our own good also, and Allah subhanahu wa ta'ala love the people those who helps other.